profit maximization. Yesterday we had seen profit maximization model, in which we had seen Sayat and March model. Okay, so पहले हम लोगों ने profit maximization क्या होता है that we had seen in the first previous lecture. Then we had seen first model of behavioral theory. Okay, so that model was about Sayat and March behavioral theory, in which what they told कि you don't set only profit maximization objective, set your objective into three categories. Okay, which were three categories? That was first one was the profit objective, or sorry, production objective or production goal, then inventory goal, sales goal, profit goal, and market share goal. If you decide this kind of five goals, automatically profit of your organization should increase. Okay, so if you set only profit as an individual goal, at that time rest of the goal will be ignored, and there will be no ultimate progress of your organization. Okay, so that along with your profit goal, you have to set four more goals, that is told by the Sayat and March theory, in which they says that you should set the production goal, you should set the inventory goal, sales goal, and market share goal. So that as a manager, as an organization, you should have to achieve all these kind of goals if you want to survive in the business. Okay, that was related to Sayet and March behavioral theory that we had seen in the previous lecture. Okay, now today we are going to discuss about Mary's theory of managerial enterprise. Okay, so Mary's क्या बोलता है? Again, Mary is the one of the economists who developed this theory, and here what Mary has done, and in case of multinational organization, again, management is different than its owners. What he says, managers are different, owners are different. Owners are the person who will provide the capital, and managers are the person who will try to improve the production efficiency of the organization. Getting this? Okay. Now, owners are the person whose area of interest is different about the organization, and managers are the person whose area of interest is different about the organization. Okay. So, management has certain goals in his mind, in their mind, and owners are also having certain goals in their mind. Okay. So, as an organization, what I have to do, I have to fulfill the goals of manager or goals of management, as well as the goals of the organization. That's why while achieving the owner's goal, you should not ignore the manager's goal. Getting this? Manager's objective, or as a manager, while achieving your own goal, you should not ignore the organization's goal or the owner's goal. Okay, that's why to achieve owner's goal as well as manager's goals, organization should have a stable growth or steady growth of the organization. Getting this? So to have this steady growth of the organization, managers as well as owners has to achieve their own individual goal. Okay, because managers goals are different, organizations goals are different. Managers are working for their individual goals as well as their certain company specific goals. Owners expectations are different from the organizations, managers expectations are different from the organizations, both are separate entity. Okay, so owners has been recruited managers to work in the organization to improve the sales, to generate the profit. Getting this? To expand the business operations. Getting this? So manager will be mainly focus on some of the activities like production improvement or sales improvement, so that output improvement that will be taken care by the managers. And owners are the person where we just see here, in corporate firms there are structural division of ownership and management. ऐसा डिवीजन किया है, स्ट्रक्चरली हम लोगों ने डिवीजन किया है.
which allows managers to set their goals which do not necessarily follow with those of the owners. जो managers के goal है उसमें owners के goal fulfill नहीं होते हैं या achieve नहीं होते हैं. Getting this? So we have designed the organization structure in a such a way that managers should have their own goals and owners should have their own goals. Area of interest are different for both the parties. Okay. Now, shareholders are called as the owners of organization and their utility variables are, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके गोल्स क्या है शेयर होल्डर्स या ओनर्स के. ओनर्स विल लुक टुवर्ड्स द जनरेट ऑफ द प्रॉफिट, जनरेशन ऑफ द प्रॉफिट. Owners will try to increase the size of your output. Owner will look towards how the output, how the sale is going to be increased. Then owner will also look towards the increase in size of capital. Capital size of capital means what your capital he wanted to raise, he will try to raise this capital. He will focus on the capital. Owner will focus on the profit. Owner will focus on the output prepared by in or one organization, as well as market share of the product, how much market he that our product has been captured, and what is my public image. So these are the some of the utility function where owner will take care or where owner will focus. समझ में आ रहा है? तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, मैनेजर से ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं. मैनेजर कंपनी में काम करने के कुछ विजन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं और ओनर कंपनी चलाने के उनके कुछ विजन्स होते हैं. ओनर क्यों काम करता है? बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ ओनर इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट things owner will take into count. So first is the profit of the organization, output size of the organization or the size of your organization, size of your output, and next is the capital requirement and capital involvement in the business, and market share, how much company has been received, and public image of the organization. So these are the expectations of owners from the organization, expectations of the owners from the organization, and we will call it as a utility function. इसको क्या बोल देंगे हम लोग? मेरिज ने क्या बोला है उसको? यूटिलिटीज फंक्शन बोला है. ठीक है. सो दीज आर द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ द ओनर्स. अभी देखो मैनेजर काम क्यों करता है बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके भी कुछ यूटिलिटीज होते हैं. मैनेजर विल वर्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई हिज ओन इंडिविजुअल गोल्स. ठीक है. तो पहला तो है कि ही शुड एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, गुड अमाउंट ऑफ पैकेज. सेकेंड इज द जॉब सिक्योरिटी. ओके. टू हैव अ जॉब सिक्योरिटी यू शुड लुक टुवर्ड्स द प्रोडक्शन और आउटपुट. अगर कंपनी अच्छा खासा चलती है तभी हम लोग उसी कंपनी में जॉब करेंगे. इफ यू फील दैट द प्रोडक्शन लेवल और द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्रीजिंग, the production is of the organization is decreasing, that time manager will quit the organization, वो दूसरी जगह पे जॉब ढूंढेगा. Getting this? So manager will work in such a organization which will give us or which will give him job security. जिसको फ्यूचर में कुछ जिसको जिसमें उसको फ्यूचर का टेंशन नहीं है, उसी कंपनी में मैनेजर जॉब करेगा. As well as power and status, what kind of authorities he has been given. He has given the role of job, general manager or production manager, but he has not given the authorities. That time he cannot increase the production. Okay. Along with the designation we have to give him authorities as well. So these are the utility function of the manager. अगर मैनेजर कुछ कंपनी में जॉब करना चाहता है तो किस लिए वो जॉब करता है? उसको अच्छी खासी सैलरी चाहिए, उसको उसके जॉब की भी सिक्योरिटी चाहिए, और उसका पावर और उसको दी गई पावर और उसका कुछ जो स्टेटस है, डेसिग्नेशन है, वो हट नहीं होना चाहिए. सो दैट मेरिज सेज दिस एज अ यूटिलिटी फंक्शन. तो हम लोगों ने देखा है इन प्रीवियस स्लाइड, utility function of owners are different and utility function of the managers are different. Okay. Now, as an organization, we have to achieve the objectives or utility functions of the owners as well as utility functions of the managers. मैनेजर्स के भी यूटिलिटी फंक्शन फुलफिल करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, और ओनर्स के भी यूटिलिटी फंक्शन मुझे अचीव करनी है. If we do
like that, that time it is called as a balanced growth of the organization. Here we are not only focusing on the profit, here we are not focusing on the maximization of the profit as like previous मॉडल में हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉफिट सेल्स, उसके बाद मार्केट शेयर, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ये 5 गोल रखे थे। अभी इसमें कुछ कहे, गोल्स आर डिफरेंट, वी हैव जस्ट क्लासिफाइड मैनेजर्स गोल एंड ओनर्स गोल। जैसे कि प्रीवियस मॉडल में हम लोगों ने साइट एंड मार्च मॉडल में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया था। यहाँ पे ओनरशिप वाइज एंड एंटिटी वाइज हम लोगों ने गोल्स के अरेंजमेंट किए हैं या सेगमेंटेशन किया है। सो हियर वी हैव क्लासिफाइड यूटिलिटी फंक्शन ओनर्स वाइज एज वेल एज मैनेजर वाइज। ओके, तो इसको बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर अबाउट दिस? नाउ अगर ये दोनों की यूटिलिटी फंक्शन है, दोनों की यूटिलिटी फंक्शन अगर अचीव करने हैं तो मुझे कंपनी का बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए। ओके, means what, manager should not look towards to achieve his own utility function. Along with these utility functions, manager's utility function, manager has to think about to satisfy the utility functions of the owners. If it is happening, that time it is called as balanced growth of the enterprise or balanced growth of the organization. Okay, now owner wants to maximize the utility function while managers attempt to maximize his own utility. तो ओनर क्या करेगा, खुद के यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई करेगा और मैनेजर उनके खुद के यूटिलिटी फंक्शंस अचीव करने के लिए या फुलफिल करने के लिए ट्राई करेगा। नाउ बोथ द यूटिलिटी डज नॉट नेसेसरली क्लैश, ये दोनों यूटिलिटी एक दूसरे को क्लैश नहीं होना चाहिए, इस दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, because most of the variables of the both utility functions have a strong relationship with single variable, एक दूसरे के साथ अच्छा खासा रिलेशन है, हर एक यूटिलिटी फंक्शन से अच्छा खासा रिलेशन है। इसका मतलब देखिए, अगर कंपनी का मैनेजर्स का प्रॉफिट यूटिलिटी फंक्शन फुलफिल होता है तो ऑटोमेटिकली मैनेजर का सैलरी भी बढ़े। गेटिंग द, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसको मैनेजर को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। गेटिंग दिस, जस्ट लुक टुवर्ड्स दिस स्लाइड अगेन। यहाँ पे अगर मार्केट शेयर नहीं बढ़ा तो हमको कंपनी में प्रॉफिट और कंपनी में शेयर स्टेटस नहीं मिलेगा। Getting this? So, while deciding these goals and objectives of owners and managers, these goals and objectives of the managers should not clash with each other. Getting this? And they never clashes because they have very strong relationship between each other. Getting this? Along with achieving my own objective, I will try to achieve my company's objective. If company's objectives are not achieved, automatically my objectives or my goals will be not achieved. Getting this? So due to which balance growth of organization is not possible. इसलिए हम लोगों को क्या करना है, we have to set the goals and we have to set the goals in manager point of view as well as owner's point of view. Okay, now while doing this we have to take care about the size of the organization. Along with this we need to take care about the size of the organization. Now size of the organization is one of the indicator, so it is reasonable to assume that maximizing long-term growth of any indicator is equivalent to maximizing long-term growth of other. इसका मतलब अगर एक का हम लोग मैक्सिमाइज कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली अगर प्रॉफिट हमेशा बढ़ता जाता है तो इसका मतलब मेरा सैलरी भी बढ़ने वाला है, अब मेरा जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ने वाली है, मेरा पावर एंड स्टेटस भी बढ़ने वाला है अगर आई हैव डिसाइडेड दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस व्हाट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ वन आल्सो अफेक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट टू द अदर्स। ओके, नाउ अभी देखिए ओनर क्या देखता है और मैनेजर्स क्या देखता है। सो सी, बीइंग owners are interested in the growth of firm and want to maximization growth of supply of capital. ओनर क्या देखेगा कि
मेरे कंपनी में कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर कैपिटल का प्रॉब्लम आ गया तो मेरा कंपनी डूब जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ओनर विल एक्सपेक्ट maximum growth of the capital, supply of capital towards the organization, which is assumed to maximize the owner's utility. जैसे कि capital time पे आता है, if there is no shortage of capital to the organization, if there is the regular supply of capital towards the organization, it will maximize owner's utility. तो उसके हिसाब से owner will be most satisfied. तो ओनर सेटिस्फाई होता है और ओनर किसको देखता है, ग्रोथ, रेगुलर फ्लो ऑफ कैपिटल उसके बिजनेस को आना चाहिए। दिस इज द एरिया वेयर ओनर्स आर इंटरेस्टेड। देयर शुड बी द ग्रोथ इन कैपिटल। हर टाइम हर टाइम हर एरिया को मुझे कैपिटल टाइम पे मिलना चाहिए। दैट इज द ओनर्स ऑब्जेक्टिव। अभी मैनेजर्स क्या देखते हैं, देखिए मैनेजर्स वांटिंग टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म रादर देन एब्सोल्यूट साइज ऑफ। साइज बढ़ने से, एक्सपेंशन बढ़ने से ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ यानी देयर शुड बी द प्रोग्रेस इन इनटू प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक जगह पे दो प्लांट बनाए लेकिन दो प्लांट का आउटपुट एक प्लांट उतना ही है, तो उसमें मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इफ यू आर एक्सपांडिंग योर ग्रोथ, इफ यू आर एक्सपांडिंग ग्रोथ ऑफ द फर्म रादर देन साइज ऑफ फर्म, सिर्फ साइज नहीं बढ़ाना है, मुझे क्या करना है, ग्रोथ दिखाना है, ग्रोथ दिखानी है। Okay, believe that growth of demand for the products is an appropriate indicator for the growth of firm. और फर्म की ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल बढ़नी चाहिए। दैट इज द मैनेजर्स यूटिलिटी। ठीक है, हम लोगों ने मैनेजर्स यूटिलिटी एंड ओनर्स यूटिलिटी देखी। ओनर्स यूटिलिटी यूटिलिटी क्या है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ओनर्स यूटिलिटी। एंड मैनेजर्स यूटिलिटी क्या है, ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़नी चाहिए। दैट इज द इंडिकेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ कैसे काउंट करेंगे, ग्रोथ इन द डिमांड। और कैप ओनर क्या देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ होने का इंडिकेटर क्या है ओनर्स के लिए, कि रेगुलर सप्लाई ऑफ कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों यूटिलिटी फंक्शन हो गए। अभी मेरिस का एक्चुअल मॉडल कैसे वर्क करता है, सो दिस वाज समथिंग बेसिक बैकग्राउंड अबाउट द मेरिस थ्योरी। अभी मेरिस का ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल कैसे फॉलो होता है, जस्ट सी हियर, दिस मॉडल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम द ओनर्स। तो मॉडल में मेरिस ने पहले ही क्या किया है, मैनेजर्स को अलग रखा है, ओनर्स को अलग रखा है। उसको बोला है कि मैनेजर को बोला है कि लेट मैनेजर set his own goals, and owners should also set his own goals। मैनेजर ने उनके खुद के गोल डिसाइड करना है, और ओनर्स ने उनके खुद के गोल्स डिसाइड करने हैं। तो ये मेरिस ने बोला है। उसके बाद देखिए, मेरिस प्रपोज दैट ओनर्स एम एट प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। वो क्या कहता है, मेरिस क्या बोलता है, ओनर्स किस पे ध्यान ज्यादा देते हैं, प्रॉफिट और मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। वेयर एज मैनेजर्स कहाँ पे देते हैं ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं बेटर सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ एंड स्टेटस एंड पावर एंड स्टेटस, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ द ओनर्स एंड द मैनेजर्स, नाउ accordingly they have set two goals। तो ओनर्स गोल अलग है, एज वेल एज मैनेजर्स गोल अलग है। सो दिस टू सेट ऑफ गोल्स कैन बी अचीव्ड। कौन से, बेटर सिक्योरिटी, जॉब ग्रोथ, बेटर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, दिस इज द फर्स्ट गोल ऑफ मैनेजर्स। एंड प्रॉफिट मार्केट शेयर इज द गोल ऑफ यू नो ओनर्स। अभी ये दोनों जो गोल है, okay, so to say these two sets of goals can be achieved by maximizing balance growth of the firm। तो ये दोनों अगर अचीव करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जी। ओके, जी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ग्रोथ ऑफ द फर्म, that is the overall growth of your firm।
विच इज डिपेंडेंट ऑन, और ये किसके ऊपर, बैलेंस ग्रोथ ऑफ फर्म किसके ऊपर डिपेंड है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. तो ग्रोथ ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन demand for the product, growth rate of demand for the product and growth rate of the supply of the capital. तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल या ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है, पहला तो ग्रोथ ऑफ डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई. So growth of demand is denoted by GD, G for growth, G stands for growth, D stands for your demand. And here in case of GC, G stands for again growth, C is for capital, and G is the overall growth of your organization. Okay, now here we have just identified capital G, that is the growth of firm, then small GD, that is the growth of product, and capital small GC, that is the growth of the capital. Now hence growth rate of firm यानी overall growth rate, that is balance growth of firm, that is growth rate of firm is balanced. कब balance होती है, when demand for the product and capital, supply of capital to the firm grow with the same rate. The rate in which your demand for the product is increasing, if in the same rate your supply of capital increases, that time the firm is called as a balance growth firm. समझ में आ रहा है, जिस रेट से मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, उसी रेट से अगर मेरे कंपनी में आने वाला सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर्स एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनर्स. जिस रेट से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, उसी रेट से अगर मेरे कंपनी में आने वाला सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ता है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर डिमांड बढ़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट का, लेकिन कैपिटल उसी रेट से अगर नहीं बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल. कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ होगा नहीं. या कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का ग्रोथ नहीं बढ़ी, तभी कंपनी का बैलेंस ग्रोथ नहीं होना चाहिए. इसलिए मेरिस बताता है कि we have to set the goals in a such a way that if one parameter increases, automatically other parameter should increases. So your managers goals and your organization's goals or owner's goals should be in line with each other. Getting this? There should be no clashes in between your manager's goal and organization's goal. समझ में आ गया? तो कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ ऑफ फर्म, क्योंकि ये आगे बहुत ये लगने वाला है बार बार. तो कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ग्रोथ. firm's product growth is firm's growth is denoted by GD and capital growth is denoted by GC. और GC और GD एक ही बेस से, एक ही रेट से बढ़ना चाहिए. अगर ये बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं ओवरऑल ग्रोथ और बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डू यू हैव एनी डाउट still now? Hello. Because हाँ, Good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग. can you give us an example for fourth point, the balance of both of them? बैलेंस ग्रोथ ना, तो यहाँ पे जस्ट लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स. क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यूटिलिटी फंक्शंस, प्रॉफिट क्या है, मैनेजर्स क्या है, क्या मैनेजर्स के यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, सॉरी ओनर्स की यूटिलिटी फंक्शन क्या है, प्रॉफिट है, साइज ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ कैपिटल और मार्केट शेयर एंड पब्लिक इमेज, ये ओनर्स यूटिलिटी है. और मैनेजर्स के क्या है, सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी एंड पावर एंड स्टेटस. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोल रहा हूं, अगर सिर्फ मैनेजर ने ओनर ने प्रॉफिट ही कमाया, सिर्फ ओनर ने प्रॉफिट ही कमाया, लेकिन मैनेजर को अच्छा खासा सैलरी नहीं दिया, तो कितने दिन के लिए ये कंपनी सर्वाइव हो सकती है, फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूं, तो इसका मतलब मैंने उस मैनेजर को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. I will have to support to the manager to survive, to satisfy his own goal.
मैं प्रॉफिट कमाता हूँ लेकिन अच्छा खासा सैलरी अगर लोगों को नहीं देता हूँ, इसका मतलब ओनर का यूटिलिटी फंक्शन अचीव होता है, फुलफिल होता है, लेकिन मैनेजर्स का यूटिलिटी फंक्शन अचीव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? पीपल विल क्विट द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं लगेगी तो वो कंपनी छोड़ के जाएगी, वो आदमी कंपनी छोड़ के जाएगा। अगर कोई आदमी कंपनी छोड़ के जाता है तो इसका मतलब इट विल क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट अचीव द प्रॉफिट। तो इससे लिए मेरा प्रोडक्शन टोटल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो गया। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होने से क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिटेबिलिटी गोज डाउन। तो अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी नॉट बैलेंस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम आई रीचिंग टू यू? यस, क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir, clear. हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ में क्या करना है मुझे? कैपिटल तो ओनर्स का कुछ ऑब्जेक्टिव्स अलग है और मैनेजर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव अलग है, ठीक है? सो योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू जनरेट ओनली प्रॉफिट, अलोंग विद दिस प्रॉफिट यू हैव टू चेक दैट वेदर योर एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड और नॉट। गेटिंग दिस? आपका प्रॉफिट बहुत ठीक से कंपनी कमाती है, लेकिन ये प्रॉफिट अगर आपने जो प्रॉफिट कमाता है, अगर वो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया लोगों को, तभी कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वही कैपिटल आपने सैलरी अच्छा खासा दिया, आपने क्या किया है? फॉर एग्जांपल सैलरी अच्छा खासा दिया, लेकिन लोगों को अगर जॉब गारंटी नहीं है, कल का आना मेरे लिए है या नहीं है, अगर ये मुझे नहीं पता, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी अच्छा खासा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कितने दिन वहां काम करना ये मुझे पता नहीं, तो क्या करूंगा? आई विल नॉट वर्क एफिशिएंटली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे अलोंग विद द सैलरी आई शुड हैव सम ऑफ द जॉब सिक्योरिटी। उसके जॉब सिक्योरिटी यानी आप इधर 1 महीने की आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर यहाँ पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, या परमानेंट रिटायरमेंट तक आप यहाँ पे काम करते हैं, कर सकते हैं। ऐसा एनवायरमेंट कंपनी का होना चाहिए। दैट इज समथिंग अबाउट जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज पावर एंड स्टेटस। आपको सैलरी अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन कुछ रूल, कुछ अथॉरिटी नहीं दिया। अगर अथॉरिटी नहीं दिया तो पीपल विल नॉट वर्क, ठीक है? तो यहाँ पे मेरिस ने क्या बोला है कि सिर्फ यू शुड नॉट इग्नोर एनी ऑफ द गोल्स। तो if you are generating the profit to set achieve owner's goal, you have to take care about the manager's goal। अगर दोनों में से एक भी गोल फुलफिल नहीं होता है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, उसको बैलेंस ग्रोथ नहीं बोल सकते उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम लोग इधर आए थे, तो ग्रोथ रेट में हम लोगों ने क्या किया? वो ग्रोथ रेट, कंपनी का ग्रोथ रेट कैलकुलेशन करने के लिए जी नोटेशन यूज किया। देन फर्म के प्रोडक्ट ग्रोथ काउंट करने के लिए, प्रोडक्ट ग्रोथ करने के लिए जीडी किया, और कैपिटल ग्रोथ इज द ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, जीसी डिसाइड किया है। ओके, तो इधर तक हम लोग आए थे। अभी देखिए, अभी ये मैनेजर को ऑब्जेक्टिव अचीव करते समय दो टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दो टाइप्स के ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ऑब्स्टेकल्स यानी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है? सो कंस्टेंट इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ। अभी ये बैलेंस ग्रोथ अचीव करते समय एज अ ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के और प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट इज about management constraint, and second is the financial constraint। Okay, management constraint, it is related to management perspective, and financial constraint which is related to supply of capital supply करते समय या फाइनेंस पर्सपेक्टिव से कुछ कंस्टेंट है। if we satisfy or if we fulfill, if we overcome this constraint, then there is the definitely growth of organization in balance mode। अभी let us try to understand what are the management constraint and what are the financial constraint। अभी मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट क्या है? देखिए, सो अमंग द मैनेजरल कंस्ट्रेंट, Mary stressed on the importance of the role of human resource in achieving organizational objective। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल का, ह्यूमन बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करते समय क्या इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, skill of the organization, skill of the employee, expertise in the particular area, then efficiency of the
employee or managers and sincerity of the team members or managers are the vital to the growth of the firm. तो अगर कोई भी कंपनी ग्रो होना है तो person should have a skill into that particular area. Person should be expertise to drive the machinery to work the task which is being allotted. Then person should work efficiently and person should have to show the sincerity. अगर ये चीजें ये मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करती है दैट टाइम दिस कंस्ट्रेंट विल कन्वर्ट इनटू द ग्रोथ ऑफ द फर्म. अगर ये प्रॉब्लम मैनेजरल प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से सॉल्व कर सकती है तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा. Getting this? So these are the managerial constraint where organization has to face. Now, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट स्किल. अगर मैनेजरल स्किल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इट विल क्रिएट द डिस्ट्रैक्शन, इट विल क्रिएट द constraint for the growth of the organization. Okay, so for example, organization for on their high levels of growth may face the constraint for skill selling among the existing employee. ठीक है, means what, you have adopted some technologies, you have number of workers in the organization, but these workers are not able to operate that machinery. What are the use of these workers then? मेरे पास एक नया मशीनरी सीएनसी मशीनरी लाना है, कुछ प्रोग्राम से चलती है, लेकिन मेरे पास जो एम्प्लॉय है उसमें से एक भी एम्प्लॉय वो मशीन नहीं चला पा रहा है. गेटिंग दिस मीन्स व्हाट, रिक्वायर्ड स्किल इज नॉट देयर and it will create the constraint for the growth of the organization. मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास वो मशीनरी चलाने के लिए बंदा नहीं है. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इज नॉट देयर हु कैन ड्राइव दिस मशीनरी. तो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आई शुड हैव टू ट्रेन द एम्प्लॉयज or I should have to hire another person who is having that kind of skill. Okay, so to solve this kind of person, I should have to find out the skill of the employees, whether the person is skill है, नया बंदा है, लेकिन वो expertise नहीं है, ये बार बार गलतियां करता है, बार बार रिजेक्शन होते हैं, बार बार कुछ कंपनी का लॉस होता है, ये भी नहीं होना चाहिए. स्किल है, एक्सपर्टीज है, लेकिन ठीक तरीके से अच्छे मन से उतना इफिशियंसी नहीं दिखा रहा है. यानी उसी मशीनरी पे 100 का प्रोडक्शन करना था, उसके पास स्किल भी है, एक्सपर्टीज भी है, रिजेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन कितना आउटपुट देता है, 20 ही देता है, 100 की जगह पे 20 देते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट यूजफुल. देन सिंसेरिटी होना चाहिए. सिंसेरिटी यानी अच्छे माइंड से उसने काम करना चाहिए, कंपनी के लिए काम करना चाहिए. ओके, सो दिस कैन बी अ मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो मेरिज ने ये 4 कंस्ट्रेंट बताए हैं. सो पर्सन शुड हैव अ मैनेजरल स्किल. ओके, तो स्किल सेलिंग या क्या है, स्किल स्किल यानी स्किल बढ़ा में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे. ओके, among the existing employee this will be an obstacle for the growth of the organization. अभी देखिए, सो स्किल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, स्किल अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द न्यू पर्सन. सो न्यू रिक्रूटमेंट मे बी यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ मैनेजरल पूल विद डिजायर्ड स्किल्स. हाउएवर, न्यू रिक्रूट्स कैन आल्सो फाइंड द लैक ऑफ एक्सपीरियंस टू मेक क्विक डिसीजन. तो नए लोग अगर हम लोगों ने पुराने लोग अगर रिप्लेस किए या नए लोग हम लोगों ने रिक्रूट किए, तो अब तभी due to having a new person into this environment, he will not take a immediate result, he is not having the experience, so that again it will create the obstacles in the balanced growth. Clear about this? managerial constraint किसको बोलते हैं? So these are the managerial constraint, these are the management constraint for the balanced growth. Okay, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि कंस्टेंट देख रहे थे, उसमें पहला कंस्टेंट हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट कंस्टेंट. So these are the some of the managerial constraint which will create the obstacles or disturbances for the overall growth of the organization. अभी देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जस्ट गो थ्रू द स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन यू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं. जस्ट रीड द स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन. There are 3 ratios generally in financial constraint where we should have to focus.
Sir, you are not audible. I have given time to read this slide. Done, sir. Okay. Now, in we have seen just financial management constraint. Now we are going to learn the what are the financial constraint which will create the disturbances in the growth of firm. Okay. So financial constraint, where first financial constraint is the debt ratio. Okay. So debt ratio, you must have studied this in financial management. Debt ratio, debt means what? It is outsiders capital. Debt यानी जो मेरे कंपनी में जो पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको। कैपिटल में से दो हिस्से होते हैं, एक मेरा कैपिटल खुद का कैपिटल और दूसरा दूसरों का कैपिटल। मेरा कैपिटल यानी कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी। और डेट किसको बोलते हैं? जो कैपिटल मैंने बाहर से लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक से लिया रहेगा या डिबेंचर्स इश्यू करके मैंने लिया रहेगा, ठीक है। जो कैपिटल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देनी है, आई एम अगेन रिपीटिंग, द कैपिटल विच आई हैव रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स वेयर आई हैव टू पे इंटरेस्ट, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज अ डेट। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में मुझे क्या देखना है कि प्रोपोर्शन ऑफ दिस आउटसाइडर कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू योर टोटल असेट्स। मेरा खुद का पैसा कंपनी में कितना डाला है और कितना पैसा मैंने इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लिया है। तो जो पैसा मैंने इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लिया है, उसका और मेरे कंपनी के टोटल असेट का कितना क्या प्रोपोर्शन है, क्या रिलेशन है, ठीक है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। So this ratio is between borrowed capital and total assets of the organization. Total assets means what? It is your fixed asset and it is a combination of your fixed asset and current asset. Fixed asset यानी for example land, building, furniture, computer, vehicle, machinery, तो इसको बोलते हैं fixed assets. And current asset किसको बोलते हैं? Cash in hand, cash at bank, inventories, bills receivables, sundry debtors, these are your current asset. total asset is equal to sum of current assets as well as fixed asset. तो कैपिटल का टोटल एसेट के साथ क्या प्रोपोर्शन है, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। ओके, अगर हाई वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, अगर हाई वैल्यू ऑफ दिस रेशियो मींस व्हाट? as compared to your total asset, if the proportion of outside fund, if it is more, it will show insolvency of the organization. तो अगर मेरे कंपनी का टोटल असेट के कंपैरिजन में ये वैल्यू, ये डेट रेशियो अगर हायर होता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे कंपनी इंसॉल्वेंट है। हेंस लो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो यूजुअली प्रेफर्ड बाय द मैनेजर्स टू अवॉइड द इंसॉल्वेंसी। तो एज अ मैनेजर आई हैव टू फाइंड द डेट रेशियो एंड दैट डेट रेशियो शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स द लोअर साइड। ये कम से कम होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, और जितना कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उतना मुझे कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाए। गेटिंग दिस? हाउएवर द लो वैल्यू ऑफ डेट रेशियो में क्रिएट द कंस्ट्रेंट टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन द हाई कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो अगर ये रेशियो कम रखा, इसका मतलब क्या है कि मेरे कंपनी को जो कुछ मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत थी, उसमें मैंने क्या किया, out of this 1 lakh rupees, I have raised only 20,000 from outside sources and 80,000 from my capital. समझ में आ रही है कंसेप्ट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या बोल रहा है कि मेरे कंपनी में जो 1 लाख रुपीस का कैपिटल है, 1 लाख रुपए कैपिटल से अगर मैंने 50-50 किया, 50,000 डेट लिया और 50,000 इक्विटी किया, जो डेट में दे रहा हूँ, जो डेट्स या डेट में मार्केट से ले रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे डिविडेंड इंटरेस्ट कितना देना है? फॉर एग्जांपल 10%। और 50,000 जो मैंने इक्विटी से लिया, तो उसके ऊपर मुझे डिविडेंड कितना देना है? 20%, बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये होता है, ठीक है।
अगर मैं ये रेशो कम रखना चाहता हूँ, इसका मतलब मैंने ओनर्स कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। अगर ओनर्स कैपिटल ज्यादा हो गया तो मुझे उनको डिविडेंड भी ज्यादा ही रेट से देना है ना। गेटिंग दिस? सो दिस हैपन्स। इसका मैंने उल्टा किया। उल्टा क्या किया मैंने? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रेज 100 रुपीज में से या 1 लाख रुपीज में से 80,000 रुपीज आई हैव रेज फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट and 20,000 I have raised to the owner's equity. But to raise 80,000 from outside market, nobody will ready to give you 80,000 loan. वो क्या बोलेगा? खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? जैसे कि हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं ना, अगर हाउसिंग लोन लेते समय, घर लेते समय अगर मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो बैंक मुझे लोन देगी क्या? नहीं देगी ना। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? इन द सेम वे, at the time of raising the loan from the banks, bank will first check your capital, your involvement of capital in the organization. अगर वो involvement ज्यादा नहीं है, satisfactory नहीं है, तो you can't raise the funds from the outside sources. That happens here. तो आपको क्या करना है? ज्यादा लोन भी आपको नहीं लेना है और कम ज्यादा इक्विटीज भी नहीं इशू करना है। गेटिंग दिस? दिस इज समथिंग अबाउट डेट रेशो। इट विल बी अ फाइनेंशियल कंस्टेंट, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट इट। ओके, अगर ज्यादा इक्विटी हम लोगों ने रेज किए और कम लोन लिया तो मुझे क्या हो जाएगा? आई हैव टू सेटिस्फाई टू माय शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, where I have to pay 20% dividend. It is the cost of this dividend, cost of this equity is 20% and cost of debt is 10%, which is more appropriate to me. So I should have to make the proper mix of this debt and equity. So this is something about debt ratio. Clear about this? This is something technical term. समझ ले का? Sir, please can you repeat this financial constraint? Okay, तो पहला, so in financial constraint we have studied only debt ratio. Debt ratio किसको बोलते हैं? Debt is nothing but it is outsiders fund. ये तो ध्यान में आया? जो लोग Yes, sir. लोन के फॉर्म में हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं डेट्स, लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में। कोई भी कंपनी चलानी है तो मुझे कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कैसे जनरेट होता है? एक तो मेरा खुद का पैसा, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और दूसरा मैं बैंक से जो पैसा ले लूंगा उसको बोलते हैं आउटसाइडर्स फंड्स। तो मेरिज ने इसमें क्या बोला है कि जब कोई कंपनी आपको चलाना है तो यू हैव टू रेज द कैपिटल, तो कैपिटल लेते समय आपको डेट रेशो ठीक तरीके से मेंटेन करना है। तो डेट रेशो के किसको बोलते हैं? डेट रेशो इज इक्वल टू, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ योर बोरोड कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू योर टोटल एसेट। टोटल एसेट के कंपैरिजन में आपके टोटल डेट्स कितना है वो कैलकुलेशन करना। फिर उसने ये बोला है, अगर ये रेशियो ज्यादा होता है, इसका मतलब कैपिटल का प्रोपोर्शन और टोटल एसेट्स का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा होता है, इफ यू हैव हाई वैल्यू ऑफ कैपिटल रेशियो, अगर ज्यादा डेट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एसेट, दैट टाइम इट लीड्स योर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब डेट से जो पैसा हम लोग रेज करते हैं दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन ना। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी कंपनी से 10 लाख का लोन लेते हैं तो दैट 10 लाख का लोन से हम लोगों ने मशीनरी लेना चाहिए। आई शुड हैव टू परचेज मशीनरी और लैंड और बिल्डिंग। 10 लाख का लोन लॉन्ग टर्म लेके हम लोग एम्प्लॉय का सैलरी नहीं करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लोन अगर किस लिए लिया है? लॉन्ग टर्म पर्पज से। So the loan which you have raised for long term purpose, you should utilize for long term objective as well. Salary is your day to day expenses where you can't utilize this loan. इसलिए तो मुझे क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने पैसा रेज किया उसी ऑब्जेक्टिव में मैंने यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है, ये डेट रेशियो हमको दिखाता है। समझ में आ रहा है क्या ये कंसेप्ट? इसका Yes, मतलब sir. मैंने शॉर्ट टर्म लोन लेके मशीनरी नहीं लेना है और लॉन्ग टर्म लोन लेके सैलरी नहीं करना है। आई कैनॉट यूटिलाइज सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज एंड सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म पर। उल्टा नहीं करना है। अगर मुझे सैलरी करनी है तो मुझे शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहिए। अगर मुझे मशीनरी लेना है तो लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहिए। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अगर Yes, sir. ये नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अगर ये नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी।
समझ में आ रहा है? अभी सेकंड केस, अगर इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया तो उससे इक्विटी शेयर से जो पैसा आएगा उससे किसी एम्प्लॉय का सैलरी नहीं करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेंट नहीं पेमेंट करना है। इक्विटी से जो पैसा आता है तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए आता है, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए उसी पैसे से। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, सैलरी देना, तो पैसा कहां से आएगा? यू कैन इंप्रूव योर सेल ना, आपका सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट कमाओ और वो यूटिलाइजेशन करो। अगर ये ठीक से नहीं होता है तो दैट विल बी जनरेट द डेट रेशियो, इंसॉल्वेंसी इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टेल मी फास्ट। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट रेशियो इज द लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें हम लोगों ने डेट रेशियो में यही देखा कि जो पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम लोग रेज करते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, इक्विटी से कैपिटल रेज किया या लोन लेके कैपिटल रेज किया तो उससे मैंने फिक्स्ड असेट ही लेने चाहिए। मैं आई हैव टू परचेज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल। क्लियर? अभी शॉर्ट टर्म लोन लिया तो शॉर्ट टर्म लोन से क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म लोन से मेरा सैलरी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन अगर मैंने लिया तो उससे मेरा रेंट जाना चाहिए, इंश्योरेंस जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहिए। आई कैन नॉट मेक द क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर ये हो गया तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या बोलता है? देखिए, दिस इज द रेशियो बिटवीन लिक्विड असेट्स एंड टोटल असेट। टोटल असेट और लिक्विड असेट का प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे and it shows your status of your current assets. Liquidity position यानी क्या है? The liquid assets are assets which are immediately convert into the cash. तो आज मेरे पॉकेट में जो मेरा पैसा है ना, that is called as a liquidity. मेरा पैसा, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेस्ड वन फर्नीचर। मैंने एक कबर्ड डाला है, गोदरेज का एक कबर्ड लिया है 50,000। तो दैट टाइम दिस इज नॉट माई लिक्विडिटी। यानी जब चाहे तो कपाट में बेच के ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता उससे, बिकॉज दिस इज माई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? सो लिक्विड असेट्स आर द असेट व्हिच विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू द कैश। अगर मेरे पास गोल्ड है, अगर मेरे पास बैंक बैलेंस है, अगर मेरे जेब में पैसा है, दैट इज माई लिक्विडिटी। मेरा लैंड कितना है, मेरा प्रॉपर्टी घर कैसा है, दैट इज नॉट माई लिक्विडिटी। यू कांट कन्वर्ट दिस अमाउंट which I have invested into my house immediately. अगर 9 बजे मुझे 20 लाख का जरूरी है तो 20 लाख का घर 9 बजे तक मैं सेल आउट नहीं कर सकता, बिकॉज इट शोज नो, इट विल गिव नॉट मी लिक्विडिटी। तो मैं कंपनी का भी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? सो व्हाट एवर इज द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टोटल असेट्स एंड फिक्स्ड असेट, उसमें से कितना प्रोपोर्शन लिक्विडिटी का है, लिक्विड असेट्स कितने हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर अबाउट दिस? लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? Yes, sir. हाँ, तो इसमें क्या है, अगर इफ योर फंड्स आर मोर लिक्विड, अगर आपके फंड्स ज्यादा लिक्विड है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। कैसे? देखिए, अगर मेरे जेब में कुछ पैसे, सपोज आई हैव 1000 रुपीज। अगर वो 1000 रुपीज इफ आई यूटिलाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, आई विल गेट सर्टेन रिटर्न्स। अगर ये 1000 रुपीज मैंने शेयर मार्केट में लगाया तो मुझे डेली बेसिस पे कुछ अर्निंग होगा। लेकिन वही 1000 रुपीज मैंने मेरे पॉकेट में रखे हैं तो मेरे पॉकेट मुझे कुछ पैसा एडिशन, वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि पॉकेट में रख के? पैसा नहीं होता है, बिकॉज फंड्स आर आइडल इन माई हाउस। इफ द फंड्स आर आइडल, लिक्विड फंड्स आर मोर इन आइडल इन नेचर, मोर इन आइडल नेचर। लिक्विड पैसे जो होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, वो आइडल होते हैं। आइडल यानी विच विल नॉट जनरेट द रिटर्न्स। बट प्रोडक्टिव जो फिक्स्ड फंड्स में होते हैं, फिक्स्ड एसेट में होते हैं, उसका जनरेशन, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसलिए आपको लिक्विडिटी प्रोपोर्शन भी मेंटेन करनी है। यू हैव टू मेंटेन दिस लिक्विडिटी रेशियो, एंड दिस लिक्विडिटी रेशियो can also create the disturbances. Clear about this? This liquidity ratio, this is the next, this is the financial ratio. And next is the retention ratio. Just look towards this retention ratio.
Okay, we are studying here three ratios. First is the debt ratio, second is the liquidity ratio, and third is the retention ratio. अभी रिटेंशन रेशियो क्या है देखिए, आई विल एक्सप्लेन यू. रिटेंशन यानी कंपनी इज जनरेटिंग द प्रॉफिट बट कंपनी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द अर्न्ड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. कंपनी प्रॉफिट कमाती है लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट कमाया और डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दे रही. इसका मतलब वो पैसा कमाया हुआ पैसा क्या करती है, once again company is investing in the organization with shareholders approval. समझ में आ रहा है? कंपनी, इफ कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट and if company is not distributing the generated profit in the form of dividend to the shareholders, so in spite of that, what company is doing, whatever is the earned profit, the company is once again investing in the same organization. That is called as the retention. Retention of the profit. Retention यानी फिर एक बार यूटिलाइजेशन किया किसका, टोटल प्रॉफिट. ओके, सो आउट ऑफ टोटल अर्न प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कंपनी रिटेन करती है. रिटेन यानी रिटेन किया तो क्या हो जाएगा, मुझे अगला लोन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज माय ओन सोर्स ऑफ कैपिटल ना. समझ में आ रहा है? तो टोटल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट कंपनी रिटेन करती है और कितना प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड लोगों को देती है. दैट इज समथिंग अबाउट रिटेंशन रेशियो. Retention, I am again repeating, retention ratio is the part of capital, part of profit which company retains for future expansion and some part company can utilize in the form of dividend. तो टोटल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करती है प्रॉफिट का और कितना हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज समथिंग अबाउट रिटेंशन रेशियो. So this ratio is inverse of dividend payout ratio. Dividend payout ratio यानी कितना पेमेंट करती है डिविडेंड के फॉर्म में, उसको डिविडेंड पेआउट रेशियो बोलते हैं. और रिटेंशन रेशियो इज द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ योर dividend payout ratio. The retained profits are that portion of net profit which is not distributed among shareholders. Retained profit क्या होता है, shareholders को distribute नहीं किया जाता है. अगर ये रेशियो ज्यादा है, रिटेंशन रेशियो ज्यादा है, तो इट इज गुड फॉर द ग्रोथ. ये कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा है. एज ए रिटेन प्रॉफिट्स आर इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है. हायर द रिटेंशन रेशियो वुड इम्प्लाई ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ रिटेंशन प्रॉफिट व्हिच मे इरिटेट द शेयर होल्डर्स. अगर वो प्रॉफिट रेशियो, रिटेन प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना कंपनी का ग्रोथ अच्छी रहेगी. लेकिन क्या हो जाएगा, योर शेयर होल्डर्स विल नॉट बी हैप्पी विद दिस. क्योंकि आप प्रॉफिट कमाते हैं, सिर्फ एक्सपेंशन एक्टिविटी करते हैं, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द financial constraint. So under management constraint we have seen some constraint and under financial constraint we have seen 3 constraint. Clear up to this? We have to stop here due to limit of time. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी तक हम लोग इस मॉडल के सिर्फ बेसिक ही देखते हैं. अभी तक हम लोगों ने मॉडल, टेक्निकल मॉडल स्टार्ट नहीं किया. दिस इज समथिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, तो फॉर 10 मार्क्स द क्वेश्चन विल बी देयर ऑन दिस काइंड ऑफ मॉडल्स. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स देखे हैं मॉडल के. तो नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग इसके ग्राफ देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर. Hello, sir. Yes. Can you show the slides so that I can screenshot the slides? Which side First. slides? Previous From slide. yesterday. Today's. What I will do, just listen me. Today or tomorrow I will share you entire PPT with Padale sir. Is it okay? Yes, sir. No problem. Yes, sir. It is okay. For the time being, you can take this screenshot from this. Next. Next. Okay. Hello. Excuse me, sir. हाँ. Sir, humble request to you. Can you please show us yesterday's slides, that Okay, main okay. goals of Yes, of course. ये हुआ retention ratio की slide. Take a screenshot of this slide. Done, sir. Okay. Now हमारा ये भी हुआ है, ये ले लो.
Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Take this. Yes, sir. Done. Yes, take. Next. Done, sir. Next. Done, sir. Next. Done. Done, sir. Okay. Already done. Okay. So let us stop here now. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.